Okay, so let's move on to the next one, students. Example number 4 from unit number 11. Okay, a matrix is being given. Write down the given matrix is sec theta, tan theta, and 0 in the first row, tan theta, sec theta, 0 in the second row, 0, 0, and 1 in the third row. Okay, we are supposed to find out inverse of the given matrix by using adjoint method. Okay, now recollect last time we have learned how to find out inverse by adjoint method. Okay, so let's start solving this problem. If asked, will carry 3 marks in exam. Because solution, the first and the foremost thing, we will consider the given matrix as A. So लिखो solution में लिखो consider matrix A लिखो आप, इसको एक नाम दे देंगे हम. Please write down this matrix. Okay, now after considering the matrix as A, let us immediately find out determinant of A. So लिखो therefore determinant of A, this is compulsory students. A inverse exist हो रहा है, ये हमें show करना पड़ेगा. Okay, then only we'll be finding out. Okay, so determinant of A, so write down these matrix entries in form of a determinant. Sec theta, tan theta 0. So now find out the value of this determinant and tell me the value of this determinant. 1. 1. Very good. Absolutely. Very correct. ठीक है. Now what will happen? Sec theta है. ठीक है. Working करके बता देता हूँ. Leave the first row, first column. Cross multiply with the negative sign. This into this minus this into this. तो वो हमें देगा sec theta minus tan theta into, leave the first row, second column. This into this minus this into this, तो हमें देगा tan theta. And as we all know, next entry तो 0 है, तो वो 0 ही आएगा, तो लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा. तो sec square theta minus tan square theta होता है 1. तो determinant of A का वैल्यू 1 आया. अच्छा, प्लीज नोट डाउन, ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये गलत नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी रॉन्ग. ओके, अभी अब लिखो सिंस determinant of A is not equal to 0, since determinant of A is not equal to 0, hence A inverse exists. Hence A inverse exists. तो हमने अभी शो कर दिया कि A inverse exist हो रहा है. अच्छा, अभी हमें क्या फाइंड करना है? नाउ फॉर फाइंडिंग आउट इनवर्स, नो डाउट वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, बट हमें पहले माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट अ कोफैक्टर मैट्रिक्स. सो यू डिवाइड योर पेज इनटू 2 हाफ. ऑन द लेफ्ट हाफ यू कैन राइट डाउन माइनर्स. ऐसा लिखो आप लेफ्ट हाफ पे माइनर्स, एंड ऑन द राइट हाफ यू राइट डाउन कोफैक्टर्स. ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं. तो माइनर्स आर टू बी फाउंड आउट फॉर द एलिमेंट्स. ये जो एलिमेंट्स है इनके माइनर्स निकलते हैं. तो वी हैव डन इट लास्ट टाइम. चलो आई गिव यू टाइम. माइनर M11. ठीक है, माइनर आई विल राइट डाउन, जस्ट स्टार्ट फाइंडिंग आउट. माइनर M12, M13, देन 21, 22, 23. Recollect the procedure last time that we did. M31, M32 and M33. ये सब माइनस हम निकाल लेंगे. ठीक है, नाउ M11 के लिए चलो 2-3 वर्किंग में करके बता देता हूँ, बाकी क्या आपको आप देना. ठीक है, M11 के लिए we delete the first row, first column.
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके जो भी एंट्रीज बचते हैं वो डिटर्मिनेंट में लिखने हैं और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। बट वी कैन कट शॉर्ट, वो डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनर M11 इज नथिंग बट सेक थीटा। पहले सारे माइनस फाइंड कर लेंगे, फिर कोफैक्टर्स तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट विल गिव अस नथिंग बट tan थीटा। अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इंटू दिस इज 0 माइनस दिस इंटू दिस इज ऑल्सो 0, तो ये 0 का 0 ही रहेगा। ओके, चलो फाइंड आउट ऑल द रिमेनिंग माइनर। ओके, can someone tell me what is the minor M21? tan theta. Very good, it's tan theta. Okay, next some other student can tell me the minor M22. Yeah, M22 is nothing but sec theta, correct. Second row second column छोड़ना है, this into this minus this into this. Okay, M23, someone else can tell me M23. So it's nothing but 0. Second row third column is to be left out, so this into this minus this into this आएगा. Okay, no need to write down in form of a determinant, directly accept it. This is allowed, ये allowed है exam में. चलो next M31. So can someone tell me value of M31? 0. Minor M31 third row first column छोड़ेंगे, correct. When we leave the third row first column, minor M31 is 0. Okay, someone else can tell me M32 minor. Third row second column, yes, तो ये भी 0 आएगा. And M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो वो एंट्री 1 आएगा. प्लीज चेक. आई होप एवरीवन मस्ट हैव गॉट ऑल द टोटल 9 माइनर्स मिल चुके हैं सबको. यस Yes, sir. ओके, वेरी गुड. चलो नाउ लेट अस यूज अवर ट्रिक फॉर फाइंडिंग आउट कोफैक्टर्स. बट बिफोर वी यूज द ट्रिक, एक्चुअल डेफिनेशन लिख लेते हैं ऊपर कोफैक्टर्स का, कि कोफैक्टर्स होता क्या है. ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ जरा, एंजॉइंट मेथड लिखा हुआ है. तो कोफैक्टर्स का क्या डेफिनेशन है, दैट Aij इज इक्वल टू -1 रेस टू i प्लस j इंटू Mij. ये आप एग्जाम में ऐसा ऊपर लिख देना. प्लीज नोट डाउन दिस and even write down this in the exam. Aij is equal to -1 raised to i plus j into Mij, so that examiner comes to know that we have applied that. Okay, तो चलो let us quickly find out by the trick. ठीक है, तो सबसे पहले जो कोफैक्टर आएगा that will be A11. so this is going to remain same. sec theta का sec theta ही रहेगा. recollect 1 plus 1, ये एक इवन नंबर है, तो दिस विल रिमेन एज इट इज विद द साइन. अब ये नंबर के जगह पे फंक्शन है, दिस इज sec थीटा, इट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो sec थीटा ही रहेगा. नेक्स्ट विल बी कोफैक्टर A12. 1 plus 2 3, एक और नंबर है, tan थीटा का हो जाएगा माइनस tan थीटा. इट चेंजेस ओनली इन साइन, जहां पे और आता है इट चेंजेस ओनली इन साइन. नेक्स्ट A13, 0 का 0 ही रहेगा. नेक्स्ट वी विल राइट डाउन A21. A21 will be nothing but negative tan theta. Next A22 will be positive sec theta. Okay, next A23 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा. साइन will not be affected, कोई साइन है ही नहीं, तो वो 0 का 0 ही रहेगा. नेक्स्ट आएगा A31. ओके, तो A31 फिर A32 एंड देन लास्टली विल हैव A33. ठीक है, तो ये 0 है तो ये भी 0 ही रहेगा, ये भी 0 है तो ये भी 0 ही रहेगा.
अब ये 1 है, बट 3 + 3 6 इट्स एन इवन, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक, सेम इन साइन, चेंज इन साइन, सेम इन साइन, चेंज इन साइन, सेम इन साइन, चेंज, सेम, चेंज एंड देन सेम। ऐसा ये ऑर्डर फॉलो होता है फॉर 3 × 3। Okay, so students, we have got this cofactors. Now we will arrange these cofactors in form of a matrix. Cofactor matrix हमें create करना है। Okay, so I hope everyone must have reached till the cofactors वाला part. Now I just rub this off and let's continue it ahead. अभी cofactor matrix लिखेंगे। चलो, so let's write down a cofactor matrix. ये क्वेश्चन था, इसका इनवर्स हमें निकालना है, तो यहाँ पे मैं एक ऐसा लाइन डाल देता हूँ, इसका इनवर्स हमें निकालना है। नाउ लेट अस राइट डाउन अ कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड लेट अस नेम दैट कोफैक्टर मैट्रिक्स एज कैपिटल बी। ओके, तो व्हाट इज कैपिटल बी स्टूडेंट्स? A11, A12, A13। ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, this is a 3 × 3 matrix. Therefore, matrix B is equal to, now let us rearrange these cofactors in form of a matrix. ठीक है, so it is first row 1 1 1 2 1 3। ठीक है, तो sec theta minus tan theta 0 फर्स्ट रो में आएगा, माइनस tan थीटा sec थीटा एंड 0 सेकेंड रो में आएगा, 0 0 एंड 1 थर्ड रो में आएगा। बट ए इनवर्स फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए, वी हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलेगा स्टूडेंट? तो वी विल बी फाइंडिंग आउट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स बी। तो लिखो, therefore B transpose is nothing but adjoint of A। मैट्रिक्स B का जो ट्रांसपोज है वही हमारा एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ A? चेंज रो टू द कॉलम और कॉलम टू द रो। तो फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, तो लिखो sec थीटा minus tan theta 0। First row becomes the first column, second row becomes the second column and third row becomes the third column। ये आ गया हमें एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स। We have got this adjoint of A। Am I clear with this? यहाँ तक प्रोसीजर क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो अभी आज मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है ना, इस प्रोसीजर को हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। प्रेफरेबली यू डू द स्टेप्स, स्टेप वाइज ही करना है आपको। बट ये जो मैट्रिक्स बी लिखा, ऑब्वियसली ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, दिस इज अंडरस्टूड। कोफैक्टर्स के बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बी ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? देखो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, एक्चुअली हम रो में लिखते हैं, बट यू कैन अवॉइड बी ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिखा। देखो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट 3 एंट्रीज इज अवर सेकेंड कॉलम एंड नेक्स्ट 3 एंट्रीज इज अवर थर्ड कॉलम। तो जैसा अरेंजमेंट है, ये हमारा फर्स्ट 3 एंट्रीज है, फर्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट 3 एंट्रीज जो है वो हमारा सेकेंड कॉलम है और नेक्स्ट 3 एंट्रीज जो है वो हमारा थर्ड कॉलम है। तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट यहीं से मिल जाता है हमें। ठीक है, बट एज वी हैव टू शो द स्टेप्स, तो ये बी के बाद डायरेक्ट हम ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो यू कैन रिमेंबर दिस वे आई हैव टोल्ड टू यू। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, अभी हमें ए इनवर्स पे जाना है। ठीक है, तो चलो आई जस्ट रब दिस ऑफ नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन। A inverse is equal to, okay, give me a minute, you can write down if you know it.
just give me a minute, I'll rub this off, then we'll move ahead. तो लिखो, by using the definition, A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. तो definition हमें use करना है, ठीक है? By definition, अच्छा क्या दिया गया है हमें? A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. This is known to us. ऐसा A inverse मिलता है हमें, तो therefore A inverse is equal to 1 by, अभी आप देखो आपके नोटबुक में determinant of A का वैल्यू हमें 1 आया था, and what is adjoint of A? तो adjoint of A हमारे सामने है, यही adjoint of A है, तो लिखो what is adjoint of A? It is sec theta minus tan theta and 0, then minus tan theta sec theta 0 and 0 0 and 1. This is our A inverse and the final answer. Obviously 1 by 1 1 ही होता है, ठीक है ना, but understood है. So therefore चलो और एक स्टेप लिख लेते हैं, therefore A inverse is equal to, write down the final answer. This is our final answer and A inverse that completes our example. Okay, please make a note of it. Same procedure students, last time जो हमने example लिया था उसमें numbers थे 1 2 3 4 5 6. अभी numbers के जगह पे हमारे पास trigonometry है, sec theta tan theta है, तो भी problem का procedure change नहीं होने वाला है, whether it's a number given or whether it is a trigonometric function given. It's going to remain the same procedure for finding out A inverse by adjoint method. Okay, please note down the next question students. Now we want to find out inverse by adjoint method, same method. इसका adjoint हम find करने वाले हैं. So this kind of problem can be asked for 2 to 3 marks. Okay, solution. So let's consider, generally for 2 marks होता है, ठीक है? Now let's consider the given matrix as A. देखो solution, consider, okay, write down the given matrix as A. So matrix A is 4 negative 1 in the first row, negative 3 and 2 in the second row. ठीक है, 2 cross 2 matrix है अभी ये. Now let us find out immediately determinant of A as per the working rule. So determinant of A, so this will be 4 negative 1, negative 3 and 2. So find out the value of this determinant. Tell me the value quickly. 5. Yes. Okay. Yes. So it's nothing but equal to 5. This into this minus this into this. Okay. So value of the determinant is 5. Okay. Now, अब लिखो since determinant of A is not equal to 0. Determinant of A का value 0 नहीं है, तो क्या होगा? Hence A inverse exists. A inverse exist हो रहा है. अच्छा, now in this obviously we are supposed to find out minors as well as cofactors. ठीक है, so on the left side of the page you write down minor and on the right side you write down cofactors. जैसे देखो आप left side पे आप लिखो minors and right side पे आप लिखो cofactors. Write down minors and cofactors. Much of a space is not required for finding the minors and cofactors in 2 cross 2. Okay, now the first minor that we will find out is minor M11. Okay, M11. Now see over here, students,
प्रीवियस जो दो एग्जांपल्स थे वो 3x3 वाले मैट्रिक्स थे. Now this is a 2x2 matrix. Now please remember when we are finding out the minors over here, वो एक single value ही आएगा. It will be not a determinant. Observe, please pay attention. Let me explain by writing it down. ठीक है, minor M11. तो M11 के लिए क्या करना है? We have to delete the first row and first column. अच्छा, जब first row first column delete करेंगे तो एक ही entry बचता है 2. So the first minor itself is 2. अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता है. जब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं तो एक सिंगल एंट्री बचता है, तो वो एंट्री ही हमारा माइनर है. इट इज नॉट लाइक 3x3. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस. ठीक है, नेक्स्ट माइनर विल बी M12. अब 12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है. डिलीट द first row and the second column, so this is -3. Next minor will be M21. Now we have to delete the second row first column. So second row first column delete करेंगे, that entry is -1. And finally we find out the minor M22. M22 find करेंगे. So for that we delete the second row and the second column. So this minor is 4. Please check. अब जब रो और कॉलम डिलीट करते हैं तो एक सिंगल एलिमेंट बचता है. That single element or that entry is to be returned. So these are all the 4 minors. अब इनके cofactors find करने हैं. Now we have to find out the cofactors. Now don't use the rule same change, थोड़ा सा इसमें अलग है. ठीक है, now the first cofactor is A11. 1 + 1 2. 1 + 1 2. 2 एक even number है. Since 2 is an even number, ये 2 का 2 ही रहेगा. This number should be returned same with the sign. Next आएगा A12. Okay, 1 + 2 3. It's an odd number, so -3 का हो जाएगा +3. अभी नेक्स्ट आएगा A21. Now please check once again that 2 + 1 3. This is also an odd number. 2 + 1 3 एक odd number है, तो ये जो -1 है उसका हो जाएगा +1. And the cofactor A22 is going to remain same. 3x3 में हम कैसे याद रखते हैं? सेम चेंज ऐसा ना, इसमें ऐसा नहीं है. देखो, this remains the same, this changes in sign, this also changes in sign, and this remains same. This is for 2x2. I hope it is clear. Minus and cofactor सबको समझ में आ गया for 2x2? Yes, sir. Okay, very good. बस अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं. लेट अस नाउ राइट डाउन अ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ओके, चलो नेक्स्ट लिखो मैट्रिक्स बी. एक मैट्रिक्स लिखते हैं जिसको हम मैट्रिक्स बी नाम दे देंगे. तो मैट्रिक्स बी का अरेंजमेंट विल बी व्हाट? राइट डाउन स्टूडेंट्स. A11, A12, A21 and A22. ठीक है, this will be a matrix B. Okay, now we will arrange this these elements, or you can say cofactors, in form of this matrix B. So लिखो therefore capital B is equal to, ठीक है, this is 2 and 3 in the first row. Okay, and next will be, and in the second row what will have students? A21. So this is 1 and this is 4. ठीक है, close the matrix का symbol. 1 1 1 2 2 3 आ गया, and फिर 1 4 in the second row. अभी क्या करना है? We have to find out transpose of this matrix. तो लिखो therefore B transpose is nothing but adjoint of A. A का adjoint है मतलब वो B का ट्रांसपोज है.
तो बी का ट्रांसपोज है, तो बी का ट्रांसपोज क्या है 2 3 इन द फर्स्ट रो becomes the first column and the second row becomes the second column. ऐसा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। Now we have got adjoint of A, but we want A inverse. हमें क्या चाहिए, हमें A inverse चाहिए। तो देखो by definition A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. So therefore A inverse is equal to 1 by, okay, determinant of A का वैल्यू हमें क्या आया था, determinant of A का वैल्यू आया था हमें 5, तो 1 by 5 into adjoint of A. So what is adjoint of A, students? So it is 2 1 in the first row, 3 4 in the second row, and that completes our example. ये हमारा final answer, 1 by 5 multiplied by this adjoint of A, and this is nothing but our A inverse. इसीलिए जब हम determinant of A find करते हैं ना, तो ये वैल्यू गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू गलत हो गया तो जो वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो उससे A inverse भी गलत हो जाएगा। Everything should be correct. Determinant का value correct होना चाहिए, minors, cofactors, everything should be correct if you want the complete mark. Okay, please note down. Okay, now let me show you a trick for finding out A inverse in 2 cross 2 matrix. Okay, now I just drop this off. अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, सो दैट यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स। एकदम सिंपल है, देखो आप क्या करना है। ओके, नाउ दिस लिख लो। अच्छा, ये आप एग्जाम में यूज नहीं करोगे, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। दिस कैन गिव यू आंसर विद इन 10 सेकेंड। ये जो ए इनवर्स हमने इतना प्रोसीजर यूज किया है टू वेरीफाई, यू कैन डू इट इन 10 सेकेंड। अगर थियरी एग्जाम है तो आपको प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, बट इफ इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप ये ट्रिक बिंदास होकर यूज कर सकते हो। अच्छा, ए इनवर्स इज 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ जस्ट पे अटेंशन स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, डू नॉट राइट डाउन, आप बाद में लिख लेना। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट ए इनवर्स, ठीक है। अब दिस इज ओनली फॉर 2 क्रॉस 2। ओके, मेक अ नोट। अब डेफिनेशन क्या बोलता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 5 आया था हमें। अच्छा, नाउ डोंट सी ओवर हियर, यहाँ पे आप ये वाला आंसर मत देखो। नाउ सी दिस वाज अवर क्वेश्चन, इसका इनवर्स हमें निकालना था। तो व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट, व्हाट डज द ट्रिक सेज? द ट्रिक सेज दैट यू इंटरचेंज दीज डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको आप इंटरचेंज कर दो, इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दो। तो ये 4 2 है, ये 2 4 हो जाएगा। इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इनको आप साइन में चेंज कर दो। तो व्हेन यू चेंज देम इन द साइन, तो ये -3 का हो जाएगा +3 और ये -1 का हो जाएगा +1। दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो कोई भी अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इफ इट्स अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, आप बिंदास ये ट्रिक यूज कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको थियरी एग्जाम में दिया है, आप डायरेक्ट ए इनवर्स लिख के आओगे तो थोड़ी ना आपको कोई 2 मार्क मिलेगा। नो, if it is a theory exam, then you have to show the procedure. If it's a multiple choice question, you know, theory में भी हमारे पास जो theory exam होता है उसमें भी multiple choice question आते हैं, उसमें अगर A inverse पूछा है आपको multiple choice question में, तो आप ये trick use कर सकते हो। Am I clear about the trick, everyone? Yes, sir. Okay, please note down the trick. तब तक मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, ट्रिक है क्या? A inverse is equal to 1 by determinant of A. determinant of A का वैल्यू आया था 5। ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स है, उनकी पोजीशंस को हमें चेंज करना है। डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को हमें चेंज करना है। ये 4 2 था तो ये 2 4 हो गया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, दे विल चेंज ओनली इन साइन। -3 का +3 हो गया, -1 का +1 हो गया। ये हमें ए इनवर्स मिल गया बाय यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक।
ठीक है, तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू बी अप्लाइड while doing MCQ था। आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो, आपको A इनवर्स मिल गया, आप वेरीफाई करके देखो whether it is right or wrong, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। ओके, प्लीज मेक अ नोट।